Well, at school, I was not the top cream. Okay, I was above average, I can say. okay, And my father wanted me to take up medical, which I resisted. okay. So still I, that time this thing is very much in the Indian parents, doctor or engineer. doctor or engineer. So I thought of engineering. Then again in engineering, my father said only IIT. So DMT taught us a lot of things. It prepared us for sea life. Lot of discipline, focus on physical fitness, studies, made us tough. First day I reported to the chief engineer. He asked me, engine room में क्या करोगे? क्या? What is the most important thing? The vessel was in port. No idea. Then he asked me, generator का lubal pressure कितना होता है? ये भी नहीं हमको मालूम. Anyway, then he said, DMT ना? Yes sir. I thought, okay, go down, you will pick up. Okay, And that is how things started. It was hard, very hard, but it was good. People trained me. I spent nearly 17 months on my first ship. 17 months on the single ship, and that is your first ship. First ship. In between, I asked for short leave. This is my direct question: why people are not staying with SCI? Welcome to the Sailor Talk, the podcast that navigates to the fascinating story of merchant navy. Today, I am with one of the most prominent personality of shipping, A.K. Gupta sir. He started his career as a trainee marine engineer with the Shipping Corporation of India and later on reached to CMD from engineering side. He is the first one achieved from the engineering side. Sir, welcome to the Sailor Talk. Thank you, Jaspreet, for those kind words. I'm really indebted. Sir, many position you hold during your sea time, your shore, total 44 year of experience. 45, you can say. 45, sir. So we will focus on the SCI first and later on move with the other things where you worked overseas, port authorities, then DCI, and many other, like you were with the Mumbai University guest For a faculty little while, huh? and Not faculty, but preparing their syllabus. syllabus, etc. Then advisory to UPSC, Yes, consultant to UPSC. then IMU. IMU also only consultant as and when required, yes. Means you shared your vision, wisdom, and leadership with all the authorities and institutions. Whosoever asked for it, I contributed. Perfect that. Sir, okay, so we will begin with your school days to cadetship, from cadetship to a first ship, and from first ship to a chief engineer, and then chief engineer to CMD of SCI, sir. Thank you, Jaspreet, once again. Well, I was born in Amritsar. Amritsar. Yeah, my nanke is Amritsar, Okay. but my education was in Dehradun. Okay, sir. My schooling, everything was there. And it was a wonderful school. Whatever I am today, I'm indebted to the school, St. Joseph's Academy. We were from a middle class, but yet my father gave me best of education. We were two brothers, and both of us he gave best of education. Those are English medium schools, which the fees was very tough Those days. those days. So what year it is exactly, if you can recall? Well, I passed out my ISC, or they used to call Senior Cambridge, then Indian School Certificate in 1970. 1970. 70. Well, at school, I was not the top cream. Okay. I was above average, I can say. Okay. And my father wanted me to take up medical, which I resisted. Okay. So still that time this thing is very much in the Indian parents, doctor or engineer. Doctor or engineer. So I thought of engineering. Then again in engineering, my father said only IIT. Okay. I was getting in Pilani, Dhanbad. Father said nothing doing. Okay. It's only IIT. I appeared for IIT, but IIT is tough entrance. It is still tough, sir. Still tough. You require coaching. Without Yes. coaching, it is very difficult.
So my father said, you appear next year also. Okay. So I was preparing. In the meantime, I was preparing everywhere. NDA and this DMAT Rajendra entrance also. Everywhere I was preparing. I was hell bent कि मुझे आगे BSc VSc नहीं करना. Okay. I must get into some professional thing. So just before the IIT second attempt, I fell sick. So that paper was also not good. NDA I appeared. I cleared the writtens, but SSB I could not clear it. But this DMAT Rajendra entrance in 1972, well, I cleared the writtens, I cleared the orals and the medical. So there was no reason. मेरा तो ये था कि जहाँ पहले हो जाए I'll go there. निकल जाओ. So that's how I landed up in DMAT. Okay. So DMAT those days used to take 100 boys, 60 in Calcutta, 40 in Bombay. So I opted for Bombay. 3 years Bombay, 1 year Kolkata. Final year Kolkata. Workshop. Yeah, workshop. 3 years workshop in Bombay. I used to go to Naval Dockyard. Okay. There were 40 boys in our batch, each batch. 10 used to go to Mazagon Docks. Okay. 10 to Scindia workshop. That time Scindia's had a workshop. 10 to Bombay Port Trust and 10 to Naval Dockyard. So I was in the Naval Dockyard batch. So very strict. Couldn't bunk. And Naval Dockyard, naval ships are very different from merchant ships. Right, sir. And they won't allow you to touch anything. Okay. So we were just observers. ठीक है, थोड़ा बहुत सीखा. But DMAT taught us a lot of things, discipline. Actually, sir, DMT, I think one of the very best institute in India. He produced a lot of very big guns in the shipping industry. I think if I remember, it started in 1949. Yes, absolutely. Well, before that, even I talk about my school, St. Joseph's. It has also given top-notch people. Air Force Chief, Okay. Air Marshal Sareen was there. Then SBI Chairman, Mr. Bhatt was there. Okay. It is a very prestigious school. कभी देहरादून जाओ तो देखो. Okay, sir. Sprawling campus, beautiful. Okay, sir. Chalo. So DMAT taught us a lot of things. It prepared us for sea life. Lot of discipline, focus on physical fitness, studies, made us tough. So I did 3 years in Bombay and 1 year Kolkata. We passed out in 76. So we were in Kolkata, and after passing out, SCI का office, people came campus के लिए. Okay. Campus में selection हो गया था. I think I opted for some other shipping company, but then someone told me नहीं SCI ले भैया. It's Okay. a public sector. It's a safe thing. So last moment I changed to SCI. मैं कहा okay SCI. Okay. I can't remember which company I had opted earlier. Anyway, it was a wise decision. Very wise decision. So my roommate next to me, he told me नहीं मैं तो SCI ले रहा हूँ. And मैं कहा ठीक है मैं भी तेरे साथ हूँ भैया. So from Kolkata, I joined. I started my career 4th September 1976. 4th September 1976. Your first ship. First ship, Vishwavikram. My CDC was made on 1st September, and 4th September 1976, I joined a ship in Kolkata, Khidarpur docks. And when I went on board, all engineers were DMAT. Okay. So it's like another home. Life was tough. Life was tough. But Chief Ne was very good. People taught me. There was a lot to learn. And then I realized I knew nothing. First day I reported to the chief engineer. He asked me, engine room में क्या करोगे? What is the most important thing? The vessel was in port. No idea. Then he asked me,
जनरेटर का लूबल प्रेशर कितना होता है ये भी नहीं हमको मालूम. एनीवे देन ही सेड DMET ना. यस सर. कहता ओके गो डाउन यू विल पिक अप. Okay. And that is how things started. It was hard, very hard, but it was good. People trained me. 4 to 8 सेकेंड इंजीनियर के साथ वॉच करते थे. Okay. फिर ब्रेकफास्ट खाकर फिर 9:30 चालू होते थे. और फिर सेकेंड इंजीनियर काफ़ी उसके साथ राउंड पूरा समझाना करना. सो रियली थैंकफुल टू हिम. So that is the totally different time from now. If Yeah. nowadays cadet before joining ship and engine cadets, they ask, is it a UMS? That is their first question. No, see, that time engine room was not UMS. It was not even air conditioned. Everything was manual. We used to adjust temperatures manually. Okay. Vishwa Vikram. Second engineer had his own interest. कि ये बंदा ट्रेन हो जाएगा तो मैं आराम से सुबह 4 बजे नहीं आना पड़ेगा मुझे. So I spent nearly 17 months on my first ship. 17 months on the single ship, and that is your first ship. First ship. And in between I asked for short leave. And then they said, no short leave, there's nothing like short leave. I'll come back and join back. They said, no. I was in Calcutta only vessel. See, last port used to be Kolkata and last cargo used to be discharged and new voyage used to start from Kolkata. So, but they did not allow. Sir, I always try to connect the present scenario with the previous one. Like that's why I am looking for the guys from those era. I think these ships known as a romantic ship, where you spend a long period of time on board and you fell in love with the people as well as your machinery and ship also. Learned a lot. There were common toilets for the fifth engineer. The fifth engineer used to share with cadets. And there was no control room whatsoever, nothing. UMS तो भूल ही जाओ. I think third engineer also did not. Third engineer, second engineer also did not have अपना toilet. Anyway, it was a very good ship, very good run. काफ़ी कुछ. We could see the world. It was a cargo ship. On US run, Great Lakes देखा, सब कुछ देखा. It was a beautiful thing. It's a beautiful land. I have pleasant memories, and after some time Gurmej also joined. Okay. So he had a shoulder to cry on. Okay. But very, very nice fellow, very humble and committed. He used to love dressing up. Okay. वॉच के बाद भी मैं कहा कहीं जा रहा है, टाई शाई पहन ली तूने? कहता कि Okay. नहीं, मुझे अच्छा लगता है. His son is a very good friend of mine, and I call him uncle. He is still same, nicely dressed up and Nicely ready to dressed. go anywhere. Anywhere. I still remember we were having dinner. The steward ने पूछा कि कितनी चपाती लाऊं? Okay. तो गुरमेश बोलता है Itni. हाइट से बताऊंगा, not with numbers. So we used to go out in Taiwan and all together. There were 3 fifth engineers, I remember. Okay. And सब गुरबेज को देख कर ना, अरे कौन है, उसकी पग छूले को आएंगे, ये करने को आएंगे. So that was sailing. Started from 76. I sailed from 76 to 88. In between, what all type of ships. Okay. Tankers, I did Bellari, Lal Bahadur Shastri, Kanchenjunga, VLCC, again Okay. 15 months. Okay. And but SCI has been very fair. I was very comfortable. Family caring, etc. was Okay. very nice treatment. And I could keep my wife with me even for a year. Okay. कहते उतरना नहीं है, अब तुम बस रखो, बीबी को रखो, तुम जहाज पर रहो. Okay. It was good. It was a mixture of tankers and cargo ships. Tankers को तो वाइफ पर रखना तो कुछ फायदा नहीं, but still she was there with me on Kanchenjunga for a while. Okay. And cargo ships also. So when I was on one of the cargo ships,
a notice came from SCI that they want people in the office. Okay. तो It is कब around somewhere 1988. 88 से पहले 88 से पहले it must be 84 85 Okay. and the master captain came to my room and said बड़ा साहब अप्लाई कर दो. Okay. मैंने कहा मेरा कोई माई बाप तो नहीं है SCI में. Okay. तब दिमाग में यही था कि सुपरिटेंडेंट बनना कोई माई बाप होना चाहिए. कहते नहीं कर तो दो. ठीक है मैं अप्लाई कर दिया. मैं भूल गया कि मैंने अप्लाई भी करा है. Okay. सो इट वॉज समवेयर इन 87 मुझे किसी ने बताया कि सर आपका नाम पैनल में है. Okay. First superintendent. सो मिस्टर मित्रा यूज टू बी देयर. देन आई वेंट एंड आस्क्ड हिम. मैं कहा साहब मुझे बताओ. आई वांट टू कम टू शोर. आई वाज लुकिंग फॉर MMD जॉब Okay. हियर देयर. मैंने SR में भी इंटरव्यू दिया. सब करा. IRS में इंटरव्यू दिया. पैसे बहुत कम थे. Okay. Actually, after selling, you always feel money is less on our shore. मैं कहने तो इसमें इस कंपनी में मैं चल रहा हूँ तो चलने दो. बाय टू एंड लॉयड्स में भी अप्लाई करा. Class के लिए. हाँ क्लास के लिए. लॉयड्स इज लुकिंग फॉर एकदम क्रीम. आर यू Okay. PGM होल्डर और समथिंग. मैं कहा नहीं भैया मैं PGM तो नहीं हूँ. सो BV में हो गया था पर BV मैंने ज्वाइन नहीं किया. Okay. उनका कुछ इंसिडेंट हो गया था. एक्सीडेंट. BV International. BV Bureau Veritas. Okay. Belvedere. ये भी क्लास है Okay. फ्रांस की. इनके 2 शिप्स डूब गए थे मैनी शिपिंग के. Okay. तो सबने बोला कि इनको ज्वाइन मत करो. मैं SCI में सेल करता रहा. माई 2 शिप्स वर BV Okay. स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड विश्व कौमुदी. Okay. सो BV वालों से दोस्ती हो गई थी एज अ चीफ इंजीनियर. सो दे सेड नो यू जॉइन अस. बट देन आई सेड नो. अगेन MMD में भी आई सेड नो आई विल नॉट ज्वाइन. और जब पता चल गया कि मैं पैनल में हूँ देन आई सेड बेटर वेट. Yes. And the call came in 88. Okay, you come. So I joined the shore establishment in 89, Feb 89. So when you took over as a chief engineer? Chief engineer I took over somewhere in 82 on Kanchenjunga. 82. 82, that was my first ship as chief engineer. I was second engineer on Kanchenjunga. Okay. And then so many chief engineers went. मेरे सामने कितने बदले गए. Okay. पर second engineer to chief engineer for 15 months. Okay. I was on Kanchenjunga. Tough life, but again learnt a lot. Massive ship. So this is the true inspiration for the younger generation. Those don't have a patience, actually, I can say. अच्छा था. We had a projector room. Movies देखते थे. We have table tennis room. और वॉक करने के लिए एकोमोडेशन से फॉरवर्ड चले जाओ वापस आ जाओ उतना ही बहुत हो जाता था. थक जाते थे. सो बट यू कैन फॉरगेट शोर लाइफ. कहीं पोर्ट नहीं मिलेगा. कुछ नहीं मिलेगा. बट इट वॉज गुड. इट वॉज गुड. आई स्टिल रिमेंबर 82 November Diwali day. I signed up from Bombay High or somewhere or LPO. And Diwali ke din I was sitting in Indira Gate Customs. And no one is there. No one is there. So Diwali was spent in Bombay Indira Dock. Customs, Indira Docks. So 89 I started my in SCI Shore BNT. When I joined BNT, my immediate boss, he welcomed me, said, gave me a pep talk. Don't worry, welcome. प्रमोशन की चिंता मत करना. प्रमोशन आएगा, सबका आता है धीरे. किसी का जल्दी आता है, किसी का देर से आता है. DGM जरूर बनोगे. Okay. सब ठीक रहा तो GM भी बन जाओगे. कोई जल्दी जल्दी जाकर वहाँ रुक जाता है, कोई आराम से जाता है, पर रुकना सबको वहीं है. आई टुक इट फॉर ग्रांटेड. ठीक है. वेल एज आई सेड, in school, in DMET also, I was a silent operator. मुझे
लाइमलाइट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. आई वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट और अ प्लेयर, पर सब कुछ कर लेते थे. पढ़ाई में भी अबव एवरेज, खेल कूद सब ऑलराउंडर. सॉर्ट ऑफ ऑलराउंड. एग्जैक्टली. और कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं. इन DMT आई वॉज फुटबॉल में गोलकीपर, हॉकी में गोलकीपर, क्रिकेट में विकेट कीपर और स्टोर्स का स्टोर्स कीपर. So you are always a good keeper कीपर. and a secret keeper also. So where were we? लास्ट कहाँ थे? 1989. हाँ. So you- this is my superior, my immediate boss. He told me proportion की चिंता मत करना. मैं कहा ठीक है. So I started working in BNT. Sir, BNT stand for? BNT stands for Bulk and Tanker Division Okay. of SCI. That is a main division of SCI, which is the breadwinner. Okay. So initially मेरा काम था परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ ऑल शिप्स एंड Okay. ओशन लॉस होता है टैंकर्स पर, उसको इवेल्युएट करना. एंड वी हैड टाइम चार्टर विद इंडियन ऑयल कंपनीज, IOC, BPCL, HPCL, उनके साथ COA वगैरह थे. तो वो सब नेगोशिएट करना, इवेल्युएट करना परफॉर्मेंस ऑफ द वेसल्स और सेटलमेंट करना. I hope you understand there Yes, is yes, sir. something like SOF Yes, and all. yes, उसको sir. करके. और टैंकर्स के लिए कुछ कार्गो लॉस तो नहीं हुआ है, कितना लोड किया, कितना Discharge डिस्चार्ज किया. पूरा, हाँ, ओशन लॉस कितना अलाउड है, ऑल दैट यूज्ड टू डू. दिस इज altogether a very different subject. I learnt a lot. Petroleum measurement. Well, after 1-1.5 साल जैसे हमेशा होता है कि सुपरिटेंडेंट्स का टेक्निकल की शॉर्टेज है, मुझे निकाल कर फील्ड में डाल दिया. Okay. अभी तुम जहाज़ों पर देखो. ठीक है, चले गए. But that no one likes. I Initially. liked it. I wanted to go. Okay. I wanted to go. So जब ऑफर आया, I said okay. So first ever put in bulk carrier. So bulk carrier 1-2 साल करा, तो वहाँ कुछ खबर तो फैलती हो कि बंदा ठीक है. फिर टैंकर वाले मुझे खींच कर ले गए टैंकर में. Okay. चलो. तो बल्क कैरियर वाले काफ़ी मुझे कि क्यों जा रहे हो क्या. मैं कहा भाई मैं क्या जा रहा हूँ, जा रहा हूँ तो मना कर दो. मैं कहा मैं मना नहीं करूँगा. सो आई वॉज देन सुपरिटेंडेंट बल्क कैरियर, सुपरिटेंडेंट टैंकर्स. और फिर जैसे SCI में होता है, दे रोटेट. Okay. फ्रॉम बल्क कैरियर एंड टैंकर डिवीजन आई वॉज ट्रांसफर टू लाइनर डिवीजन. Okay. That is only happening in SCI, sir. Because if any other company, they are making specific fleets and specific guys for a specific fleet. So, but in SCI you get the overview of entire shipping. So that's why the shipping, the SCI guys, they rose to beyond their capacity because they have seen the whole division of shipping. Like you sailed on a tanker, bulk carrier, and as you're saying, liner also. So you will get the good overview of the entire industry, how it और works. इन्हीं all these 3 type of ships have done the dry dock Ah, as a superintendent. okay. ड्राई डॉक तो कितने करे होंगे मुझे पता नहीं. 50, 60, 100 मुझे पता नहीं है. इवन एट प्रेजेंट वेयर आई एम एडवाइज़र, उसका ओनर बोलता है गुप्ता साहब 4-5 दिन 6 दिन के लिए चले जाओ और वहाँ रहना करना कुछ मत नहीं. Okay. जस्ट एडवाइस कंट्रोल करना. आई लव इट. जहाज को देखना ही मुझे अच्छा लगता है. सो आई केम टू लाइनर डिवीजन. हाँ, बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू, when I was in BNT only, promotions were coming very rapid. Okay. मुझे पता भी नहीं, लोग सबकी प्रमोशन आने वाले हैं, ये है वो है. पीपल विल थिंक मैं तो फ्रेम में ही नहीं हूँ इसके, तो अभी इतना ही टाइम हुआ है, 3 साल हुए हैं, इसका तो होना ही नहीं चाहिए. होगा ही नहीं. 4-5 साल जिनको हो गए हैं वो वेट कर रहे हैं, मेरा हो गया. सो थैंकफुल टू SCI. All promotions came very fast. I had opportunities to go to Singapore
for a short job when Okay. I was in SCI. Everything was done. They selected me also as a superintendent in tanker company in Singapore. Okay. My brother was in Delhi. सब आए मिलने आए कि जा रहा है सिंगापुर. घर में दालें आटा दाल चावल सब वाइंड अप हो गया. Okay. चलो शिरडी चलते हैं. Okay. शिरडी गए, वापस आ रहे थे. तो माई ब्रदर आस्क्ड मी, तू क्यों जा रहा है? मैं कहा आ जाऊँगा वापस. कहते नहीं आएगा तू. It's a good bond actually. मैं कहा नहीं कि यहाँ क्या कमी है तुझे? मैं कहा कमी तो कुछ नहीं है. तो फिर क्यों जा रहा है? Okay. मैं कहा नहीं जाता. That is the emotions actually. बस, नहीं गए. Okay. ठीक है. Then from Liners in 2096 I went to Liners, I think. Yeah. 96, 97 I went to Liners, and 2002 they posted me to Irano Hind. Okay. 2002. तो Okay. उससे पहले भी पूछा था पर मैंने मना कर दिया. My father was with me and he was struggling with some disease. But finally I lost him in 2001. So 2002, when the time came, I said, okay, I'm ready to go. So 2002 to 2005, I was in Irano Hind Shipping Company. Okay. They mostly had bulk carriers and one tanker. There I was director administration Okay. plus DPA plus CSO. Okay. Holding all top-notch positions. Yeah, and again learned a lot how a small shipping company operates in a different environment. It was a learning curve. 2000, by that time I had become DGM. Okay. 2005 November I came back, and in January में promotions होते हैं. Okay. तो in January I got my promotion as GM. Okay. It was a surprise to me. बाद में रियलाइज़ किया कि अगर मैं तेहरान नहीं जाता, मैं यहीं रहता तो शायद जल्दी हो जाता. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. बट Right. एनीवे आई वाज नेवर. So Irano Hind, you spent like I think 3 years there. 3.5 years. 3.5 years. 3.5 years Irano Hind I spent. So then I was GM tankers. God was nice. I performed well. And then I realized कि ये डायरेक्टर भी बन सकते हैं. एज है. कभी सोचा नहीं था. कभी हम तो GM बनकर ही बहुत खुश थे. In 2010 I became director technical Okay. and offshore. So ठीक है. And then again I realized अरे CMD का भी चांस है. So God was great. See, ज़्यादा शोरगुल नहीं करते थे, चुप रहते थे. यही है क्वाइट ऑपरेटर. कुछ पुश नहीं करना. मे बी दैट वॉज लाइक्ड बाई पीपल. So I had a short tenure as CMD, Okay. 2 years I would say. And this is one thing which is very wrong in PSUs. ठीक है, सिस्टम ऐसा है. अदरवाइज चेयरमैन शुड हैव अ लॉन्गर टेन्योर. Longer period. हर एक का ये होता है कि मेरा टाइम निकल जाए. Right. ग्रेट ईस्टर्न और SCI में क्या फ़र्क है? यही है ना. वहाँ वो सेठ देखता कि कंपनी मेरी है, हमेशा मेरे गले में रहेगी. Right. यहाँ चेयरमैन देखता है मेरे 4 साल है, 3 साल है, 2 साल है, मेरा टाइम निकल जाए. Right. सब नहीं करते पर मोस्ट सबके दिमाग में Yeah. होता है. If somebody had a longer period on that position, then he can make a good decision and set a wisdom for a certain time of period also. So when I became CMD, it was UPA government.
Okay. कांग्रेस की It is in 2014. 14. Mr. Vasan was the shipping minister, and I had a support from the ministry and all, very good support. Not to say, but Mr. Vasan was a very quiet fellow, very nice, decent, unlike some other ministers. He never used to get involved in work. Okay. उनका अपना सो जब मंत्री इन्वॉल्व नहीं होगा तो सेक्रेटरी भी आराम से कर रहेगा, जैसे चल रही है कंपनी चलने दो, जॉइंट सेक्रेटरी भी ऐसे ही रहेगा फिर. Right. But anyway, in the ministry I had support and they must have liked me or whatever it is. They have seen me from 2010 से 14 तक देखा ही होगा. तो CMD बन गए. बनने के बाद मैंने सोचा मैं कहाँ फंस गया. Why so, sir? 3 साल से लॉस हो रहा था. Yeah, right. It is in loss. And it is about to lose this Navratan status, right? Absolutely. First meeting as CMD, which I was called to Delhi, was to attend board for restructuring of 6 public sectors. Okay. BFIR ऐसा कुछ नाम था. Okay. तो उन्होंने SCI को इंसिपिएंट सिक डिक्लेयर कर दिया था Okay. कि अभी क्या करना है इसके साथ. मैं कहा ठीक है. मैंने उनको समझाया, मैं कहा मुझे कुछ टाइम दो. उनको मैंने थोड़ा हौसला दिया. मैं कहा गिव मी सम टाइम, थिंग्स आर टर्निंग. शिपिंग इज़ अ साइक्लिक इंडस्ट्री, ऑल सेड एंड डन. बट ये कहकर छोड़ देना कि मार्केट ही ऐसा है, ठीक नहीं है. Right. This is what I believe. When the market is bad, then you have to get tough. You have to take decisions and be more vigilant. उसके बाद सरकार बदल गई. Yeah, government change in 2004. इंडिया गवर्नमेंट आ गई. इंडिया गवर्नमेंट सोचती है, गडकरी साहब ने सोचा कि ये तो यूपीए का आदमी है. Okay. मुझे बोला गडकरी साहब ने, गुप्ता जी अपना मुझे प्रॉफिट चाहिए, नहीं तो पेटी बांध कर रखो. Okay. मैंने कहा ठीक है. You are thinking I am not this का इसका आदमी और उसका. I am just shipping man. Then he says I'll take review of SCI. Okay. ठीक है यार, आज तक किसी ने रिव्यू नहीं लिया. सेक्रेटरी ने नहीं लिया, जॉइंट सेक्रेटरी ने लिया, मंत्री रिव्यू ले रहा है. हर महीने रिव्यू लेना शुरू करा उन्होंने, Okay. गडकरी जी ने. नितिन गडकरी. तो सब नीचे भी अलर्ट हो गए. मंत्री के रिव्यू से पहले सेक्रेटरी रिव्यू लेता है, सेक्रेटरी के रिव्यू से पहले सारा GS रिव्यू लेता है. ठीक है. स्लोली आई गॉट कंफर्टेबल विद गडकरी जी. इंग्लिश से हिंदी में आ गए. Okay. एंड ही मस्ट हैव सीन कि ठीक चल रहा है. मैंने उनको बोला मैं बनिया हूँ, डोंट वरी, कंपनी में संभाल लूँगा, मुझे टाइम दो. सो आई सेटल डाउन. लॉसेस में थी धीरे धीरे. अब आप पूछोगे क्या किया मैंने, क्या जादू किया. Actually, sir, that is my next question. कोई जादू नहीं किया. God was great. Yes, some decisions were taken. First thing is CEO or CMD must walk the talk. Austerity. मैंने पे कट लिया अपने आप. Okay. मैं कहा जब तक कंपनी में प्रॉफिट नहीं आएगा, आई विल नॉट टेक माई फुल पे. Okay. जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आएगी, आई विल नॉट ट्रैवल बाय बिजनेस क्लास. Okay. दैट सेंड्स अ मैसेज. पे कट का तो मैसेज मैंने बोला था किसी को जाना नहीं चाहिए. Okay. आई डोंट वांट टू पब्लिसाइज. पर सब देखते थे कि ये बिजनेस क्लास से नहीं जाता. सो ऑल डायरेक्टर्स ऑल्सो स्टार्टेड फ्लाइंग इकोनॉमी क्लास. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें विच रियली डोंट कंट्रीब्यूट टू प्रॉफिट, But बट दे सेंड अ message. message. Then I was determined कि कुछ तो we have to turn around. Then there were some ships which were ordered when the prices were very high. Okay. Very high. And shipyards ने बुकिंग तो ले लिया.
दे वर नॉट एबल टू डिलीवर. हमने उनको एडवांस दे रखा है. इफ़ दे आर नॉट एबल टू डिलीवर, कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि अगर टाइम पर डिलीवर ना नहीं- करो तो यू कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट. राइट. तो वो तो एज इट इज साले महंगे प्राइस पर थे. तो फ्यू शिप्स वी रिसाइंड इट. सपोज हमने डॉलर में पे किया, उस वक्त डॉलर 40 था. एंड लेटर ऑन इट रोज अप. जब रिसाइन किया, परफॉर्मेंस गारंटी हमको वापस आई पैसा, तो वो 55 के हिसाब से आई. ओके. द डिफरेंस इटसेल्फ इज 15 रुपीज. करेंसी फ्लक्चुएशन का गेन हुआ. पर ये नहीं कि वी ब्लाइंडली रिसाइंड इट. आई गिव यू एन एग्जांपल. 2 VLCCs we are ordered for 105 million ओके. 105 मिलियन ईच. सो हमने एक को रिसाइंड किया, एक को लिया, ओके. और प्राइस लाई 85 पर. ओके. So it is like a 20K means we got it back. And some other also contracts we negotiated. इतना नहीं मिल सका, पर फिर भी मैंने 34 मिलियन कम कराया था ओके. यार्ड्स के साथ. ये बहुत महंगे ऑर्डर हुए हैं, प्लीज़. अगर मुझे और सपोर्ट मिलता, कुछ होता. बाद में मैं हाइंडसाइट आई रियलाइज्ड कि आई कुड हैव स्क्वीज देम स्टिल मोर. ओके. आई वेंट टू कोरिया. जो शिपयार्ड का जो मेन आदमी था, उससे बातचीत हुई. मैं कहा मैं यार्ड में नहीं जाऊंगा. उनका डालियन में भी यार्ड था. ये बात सियोल की है. मैं कहा जब तक तुम मुझे नेगोशिएट नहीं करोगे प्राइस, ओके. मैं यहीं से बॉम्बे चला जाऊंगा. काफ़ी देर बातचीत हुई. फिर बोलता है मिस्टर गुप्ता, व्हाट प्राइस यू वांट. ओके. घबरा गया यार. कहता व्हाट एवर यू से. मैंने कुछ बोल दिया मुंह से. कहता डन. ओह, दे एग्रीड ऑन दैट. बाद में मैं कहा यार मैं तो और कम कर सकता था. एनीवे, सो दैट वाज दैट. देन व्हेन आई वाज डायरेक्टर टेक्निकल ओनली, हमारे पास 4 या 5 VLCC थे. आई थिंक दिस दिशा राही. नहीं, ये these तो are LNG हैं. LNG तो carrier LNG है. हैं. उजाला, वैभव, विभोर, विराट, ओके. ऐसे 4 या 5 VLCC थे. और दे आर वाइट एलिफेंट्स. ओके. अगर पैसा बनाएंगे तो खूब बनाएंगे. अदरवाइज अगर मार्केट डाउन है तो तुमको खड़े रखने पड़ेंगे. बहुत ही, यू कांट इवन रिकवर द स्टैंडिंग चार्जेस. ओके. Very difficult. So as CMD, I had good colleagues. Director Bulk Carrier and Tanker Division was a good friend. I never used to interfere. मैं कहा छोटे छोटे जहाज़ों पर कंसंट्रेट करके एट CMD लेवल मुझे इंटरफेयर नहीं करना. Let us focus on VLCCs. So some decisions were taken about the employment of VLCCs. कई स्पॉट मार्केट में, कई लॉन्ग टर्म चार्टर में. IOC wanted to take the VLCC. हमको कुछ 16 या 18 हज़ार डॉलर पर डे दे रहा था. गुड मनी एक्चुअली. नहीं, मैंने बोला मुझे 20 चाहिए. ओह, ओके. वो 20 नहीं दिया. मैं कहा मैं नहीं दूंगा जहाज. नहीं हुई डील. ओके. मार्केट चढ़ गया. मैंने जहाज 80 में लगाया. ओह. कुछ इंट्यूशन था, कुछ था हमारा पुलिस का कि सब जाने दो. बट सर 18,000 इज इवन ऑल्सो गुड मनी दैट टाइम. जस्ट प्रॉफिट कुछ खास नहीं है. VLCC का बड़ा स्टैंडिंग चार्जेस आर क्वाइट हाई. ओके. एंड यू हैव टू मेक द हे व्हाइल द सन शाइन्स. ओके. सो कुछ VLCC लॉन्ग टर्म चार्टर पर, कुछ VLCC स्पॉट मार्केट में खेलो. स्पॉट Okay. में ज़्यादा पैसा है. ज़्यादा पैसा है, बट डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. राइट. सो दैट वाज अ गुड डिसीजन. दैट पेड ऑफ. और एक चीज़ और हेल्प करी, गॉड ने हेल्प कराई. ईरानो हिंद ने एक शिप, जब मैं ईरानो हिंद में था, स्पेक्स मैंने ही बनाए थे उस शिप के, सुएज़ मैक्स टैंकर. ओके. उसका नाम रखा था ईरानियों ने ताजमहल. ओके.
ईरान और हिंद के लिए, वो कोरिया में बना और ईरान और हिंद ने कुछ पैसा भी दिया हुआ था, स्टेज पेमेंट, पर डिलीवरी के टाइम ईरान पर सैंक्शंस आ गए। सो यार्ड ने बोला हम आपसे पैसा नहीं ले सकते। तो ईरान और हिंद वाले एससीआई के पास आए कि आप ये जहाज़ ले लो। तो तब तक एससीआई, ईरान और हिंद भी, एससीआई वांटेड टू स्टे अलूफ फ्रॉम ईरान। सो एनीवे हमने वो जहाज़ तो ले लिया, पर पैसा बहुत लेट दिया। ओके। हाँ, मैं कहा जब सैंक्शंस वैक्शन थोड़ा शांत होगा तभी देंगे। और ईरानियंस को भी ये था कि जहाज़ तो रेडी है, कि चलो किसी के पास तो आया, फिर देखेंगे। एंड दैट वेसल इज वेरी गुड, परफॉर्मिंग वेरी गुड। देश शोभा, सुएज़मैक्स स्टिल परफॉर्मिंग वेरी गुड। सो these are the few things. Slowly 200 crore was not a good profit, but still good enough in those. From negative to positive is a big negative achievement. to positive. And I've got a PM मोदी का ट्वीट है उस पर। Okay. मेरे पास है रिकॉर्ड उसका, 3 साल में लॉस और फिर प्रॉफिट। और किसी ने सुना नहीं होगा, 15 अगस्त 2015 की लाल किले से जो स्पीच है उसमें भी मेंशन करा हुआ है एक लाइन। Okay. शिपिंग कॉर्पोरेशन नहीं बोला है, इंडियन शिपिंग कंपनी, ऐसा उन्होंने बोला था मोदी साहब ने। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स सम। That time, sir, how many ships SCI is holding? तब 80 के करीब थे। Okay. वंस अपॉन अ टाइम एससीआई हैड अबाउट 150 शिप्स, पर वो छोटे छोटे थे। Okay. पर Sir, SCI is having a very डाइवर्सिफाइड फ्लीट। yeah, diversified fleet, means they are in every field. About SCI, it's very amazing. I was just searching that SCI, they want to form a 3 SCIs, Eastern, Western, and Southern. ये पहले था। Initial years when they started, like after partition. ईस्टर्न शिपिंग कंपनी और वेस्टर्न शिपिंग कंपनी Yes. थी, और 1961 में दोनों मर्ज merge हो गई. होकर Then they merged. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। Shipping Corporation of India. And since then it is the breeding ground for the Indian रीडिंग, ट्रेनिंग ग्राउंड, सब कहीं भी जाओ, बाहर की बिग कंपनी, शिपिंग कंपनीज में ऊपर लोग बैठे हैं। स्टार्टिंग एससीआई से हुई है। So why the people those sailed or worked with the SCI, they are not staying with the SCI? This is my direct question. Why people are not staying with the SCI? देखो, पैसे किसको बुरे लगते हैं? एससीआई में बड़ा पैसा नहीं है। Let me Okay. tell you. चाहे सेलिंग में हो चाहे शोर में हो, नो बिग मनी। जैसे मैंने कहा, मैं भी सिंगापुर कंपनी के साथ जाने को रेडी था। सेलिंग में भी बहुत हुआ मुझे कि मैं फॉरेन कंपनी ज्वाइन करूं। मेरे बैचमेट्स डीएमईटी के, अरे वहाँ इतना मिलता है, वहाँ इतना मिलता है। मैं इसलिए नहीं गया कि आई एम अ वेजिटेरियन। Okay. तो मैं कहा भैया इंडियन खाना है, मुझे नहीं जाना, मुझे एससीआई में रहना है। सो अपना अपना द वे ऑफ नज़रिया होता है। आई थिंक मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, यू मस्ट इंजॉय योर वर्क कल्चर। और सबने वही दाल रोटी खानी है, इतना पैसा लेकर क्या करना? भगवान ने सब कुछ दिया है, ऑल आपकी सब ज़रूरतें मीट हो जाती हैं, उसके बाद भी इनफ इज़ इनफ। सो आई हैड दैट एटीट्यूड एंड वेरी कंफर्टेबल। आई हैड नो रीज़न टू लीव एससीआई एक्चुअली। सो एक दो बार जो दिमाग में खुराफात आई भी, वंस आई रिजाइंड एज अ थर्ड इंजीनियर, दे वर नॉट रिलीविंग मी। Okay. मैंने रिज़ाइन कर दिया बॉम्बे में। मैं कहा ये रेजिग्नेशन, नहीं आपका फिर रिलीवर आ गया कि नहीं, अच्छा जाओ तो करना पड़ता है। अदरवाइज एससीआई हैज़ बीन वेरी फेयर एंड अ वेरी गुड कंपनी। आई रियली स्टिल माई फीलिंग्स फॉर एससीआई आर इमेंस, इमोशनली वेरी मच अटैच्ड। कहीं भी कुछ दिखता है एससीआई भी, कैप्टन त्यागी इज देयर, company is doing very well. So I also feel nice. So it was in the month of June or something. I was in Cochin for a meeting, Cochin Port Trust की meeting थी। Okay.
मिनिस्ट्री से कॉल आई कि डेलीगेशन ईरान जा रहा है Okay. एंड यू आर पार्ट ऑफ द डेलीगेशन, Okay. और कल आपका पासपोर्ट चाहिए दिल्ली में। मैं कहा मैं कोचिन में बैठा हूँ कि कुछ भी कीजिए, योर नेम हैज़ बीन। मैं कहा पहले मुझे बता तो देते हैं। देन आई रैंग अप माई ऑफिस इन बॉम्बे। मैं कहा प्लीज़ गो टू माई रेजिडेंस, टेक माई पासपोर्ट, And courier to Delhi. कोरियर टू दिल्ली और समवन फ्लाई टू दिल्ली। मैं कहा मंत्री जी के कुछ नहीं, कांट टेक एनी चांसेस। So which year it is? 15 में था शायद, मई Okay. 15। Okay. ठीक है, तो ये छाबर पोर्ट का एग्रीमेंट साइन करने जा रहे थे, एमओयू साइन करने जा रहे थे। Okay. तो मैं कहा यार मैं क्या, एससीआई क्या करेगी, हम तो ईरान और हिंद से थोड़ा डिस्टेंस बना कर रख रहे हैं उनका बिकॉज ऑफ शिप लिया है। सैंक्शंस। पर थोड़ा था कि चलो फिर तेहरान देखने को मिलेगा। इट्स ए लवली प्लेस तेहरान। ठीक है, तो मंत्री जी का डेलीगेशन था, हम गए, मंत्री जी एमओयू साइन कर रहे हैं। मैं कहा करने दो इनको, एमओयू साइन कर रहे हैं, करने दो, कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो हाँ, मंत्री जी ने कुछ देखा होगा, ही कैन स्पीक फारसी थोड़ा बहुत लोगों के साथ, और सब रास्ते वास्ते मुझे, मैं रहा हुआ था 3.5 साल तेहरान में। ऑन द रिटर्न जर्नी गडकरी जी टोल्ड मी, पहले तो बुलाया, एससीए का रिव्यू कर लेते हैं रिटर्न फ्लाइट में। इट वाज अ प्राइवेट फ्लाइट, कमर्शियल फ्लाइट नहीं थी, Chartered. इंडियन एयरफोर्स का चार्टर्ड प्लेन था, कि आ जाओ एससीए का रिव्यू करेंगे। मैंने उनके पीए को बोला भैया गिव मी सम टाइम, तो अपने लेट मी कंपोज माई थॉट्स। तो गए। एनीवे आई वाज वेरी फ्री विद हिम, ही वाज अ वेरी गुड मिनिस्टर, वेरी गुड, Everybody, sir, whoever worked with him, they एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते। चलो रिव्यू करा, सब कुछ करा, क्या तकलीफ़ है तुम्हारी, क्या चाहते हो। मैंने पिछली बार बोला था ये करने को, करा नहीं करा तो क्यों नहीं करा, पर कुछ नहीं, समझ आ गया नहीं कर सकते सिस्टम में, ठीक है। कहते हैं मेरा काम है आपको आइडिया देना। एनीवे आई विल कम टू दैट लेटर। सो रिव्यू हो गया, फिर बोलते हैं गुप्ता जी रिटायरमेंट के बाद क्या सोचा है। मैं कहा अभी तो 6 महीने हैं, कुछ सोचा नहीं है अभी, कुछ कमिट नहीं कर रहा है, कि कुछ करना भी मत। अच्छा, हाँ, हम आपको जाने नहीं देंगे। मैं कहा ठीक है सर, मैं नहीं करूँगा। क्या बोलूँ, मंत्री जी को कुछ नहीं बोल सकते कि सेक्रेटरी से बात करना। बाद में सेक्रेटरी से बात करी, मैंने बोला मैं बॉम्बे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, ना मुझे दिल्ली में रखना। I Then came to Mumbai in 1972, and after that, I don't want to leave Mumbai. हाँ, then he told me about this Chabar. I said I'll operate from Bombay. Okay, They agreed. मैं कहा मैं थ्रू आउट में ईरान में नहीं रहूँगा। okay, So he agreed. And having previously stayed in Iran gave me lot of advantage or lead. एक तो उनकी भाषा बोल पाना इज़ अ ग्रेट थिंग। आप क्या बातचीत कर रहे हो मैं समझ तो सब लेता था, बोल भी लेता था, पर पढ़ने में थोड़ी तकलीफ थी। सो ये जुलाई में ही गेव मी एडिशनल चार्ज ऑफ Okay. आईपीजीएल। IPGL. जब मैं एससीआई में था Okay, तभी मुझे एडिशनल चार्ज दे दिया आईपीजीएल का, एस एमडी आईपीजीएल। जो इन्होंने मई में एमओयू साइन किया उसको एग्रीमेंट में चेंज करना है। okay, सो ईरान जाते थे, मीटिंग होती थी, प्रोग्रेस वॉज वेरी स्लो। मेरा एससीआई का काम सफ़र हो रहा है यार, मैं यहाँ IPGL. 6 बार में लगाऊं यार। एक बार तो सेक्रेटरी ने बोल दिया ये गुप्ता साहब अब वापस नहीं आएंगे जब तक एग्रीमेंट पूरा ना हो। Okay, मैंने कहा साहब कैसे, कि नहीं। एक होते थे
डिप्टी चेयरमैन JNPT के मिस्टर नीरज बंसल, वो भी मेरे साथ थे। कहाँ फंस गए यार। और फिर दिसंबर में मेरा रिटायरमेंट है, 26 दिसंबर इज़ माई बर्थडे एंड आई एम ईरानियंस को मैंने बॉम्बे बुलाया, मैं उनके साथ पूरा दिन नेगोशिएट कर रहा हूँ। फिर मैंने सेक्रेटरी को फ़ोन किया, मैं कहा साहब नहीं हो रहा, ये हिल नहीं रहे हैं, ये नहीं होगा, आई कांट एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर एक तरफा। कहते नहीं गुप्ता जी लगे रहो, लगे रहे। खैर मंत्री जी चाहते थे कि मैं SCI भी देखता रहूँ साथ साथ। ही वॉन्टेड टू गिव मी एक्सटेंशन इन SCI ओनली, बट देन उसमें पेपर वर्क बहुत है और लोग भी फिर नाराज होते हैं, हुआ एस्पायरिंग टू बिकम CMD। सो फ्रॉम 1 जनवरी 2016 आई वॉज गिवन MD IPGL। तो फिर हम एक्सक्लूसिव इस पर लग गए और वो MOU को हमने कॉन्ट्रैक्ट में फाइनली कन्वर्ट किया। ईरानियंस भी ठीक है, हर एक कोई अपने देश के प्रति होता ही है, राइट कि बेस्ट टर्म्स मिले। राइट। और जो उनका नेगोशिएटिंग का लीडर था, कभी कभी कहता था गुप्ता जी बाहर आ जाओ, ओके इनको जगड़ने दो, मुझे मालूम है क्या करना है, पर करने दो उनको। तो उसके साथ अंडरस्टैंडिंग थी, हो गया। और मई 15 में ये MOU साइन हुआ था और मई 16 में हमने छाबर का एग्रीमेंट साइन कर दिया, जब PM उधर आए थे। ओके। PM उधर आए थे। ईरान तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है सैंक्शंस के कारण, उसको कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर दिया, बट पॉलिटिकल सिचुएशन कीप्स ऑन चेंजिंग। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करा बीच में, फिर उसके बाद सैंक्शंस आ गए, ये वो, SCI के जहाज़ भी उधर नहीं जा सकते, कोई जहाज़ नहीं जा सकता, PNI कवर चाहिए। एनी शिप विच कॉल्स ईरान इज लाइक अछूत, अनटचेबल, वेरी डिफ़िकल्ट। और तब अमेरिका भी अफ़गानिस्तान में काफ़ी इन्वॉल्व था, उसका इंटरेस्ट था, एंड दे वांटेड छाबर टू कम अप फॉर डेवलपमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान बीइंग अ लैंडलॉक्ड कंट्री। पर अमेरिका ने कभी वेरी क्लियरली नहीं लिख कर दिया, बैंक्स वैंक्स कुछ भी, कोई नहीं, हमको इक्विपमेंट खरीदना है, क्रेन्स खरीदनी है, बैंक्स नेवर कुछ, कैसे कोई, आई कुड नॉट बाय, यू अंडरस्टैंड दोस गैंट्री क्रेन्स। यस सर। कंटेनर वेसल में आपने तो सेल किया, मैं इनमें खरीद ही नहीं सका, इससे कोई नहीं आगे आया। बड़ी मुश्किल से मैंने इटली की कंपनी है इटालगुरु, उससे कुछ मोबाइल हार्बर क्रेन, हमने 6 मोबाइल हार्बर क्रेन ली, पर दोस्त STS क्रेन्स, RMQC जिसे बोलते हैं, बिगेस्ट सप्लायर ऑफ RMQC इज ZPFC, चाइना की कंपनी। They are having the special ships to carry those cranes. So, और ये मोबाइल हार्बर क्रेन भी कैसे आई, इटली से बॉम्बे आई, उसका मैं बॉम्बे डिलीवर करूँगा, Okay. फिर बॉम्बे से हम चाबा लेकर गए। Okay. But it is not very far. I think only 500 nautical miles from Mumbai to Chabar. So, but ले जाने वाला मिलना चाहिए ना, lot of challenges. Even the loading discharging is also very big Very challenge tricky. for those ships. Anyway, I learned a lot about the port sector in that period. In my IPGL shipping तो टैग सीख ही गए थे, जैसे शिप पर सर्वे कराना, डबलर लगाना सीख जाते हैं, Right. शिपिंग के काफ़ी सीख गए थे। पोर्ट सेक्टर का काफ़ी मुझे ज्ञान मिला, वेरी वेरी नाइस। After listening all this, I am feeling that sailing is nothing. The sailing is just a basic qualification, like you are doing your basic primary schooling. एंड ईरान की जो भी मीटिंग होती थी ना, गडकरी जी मुझे बोलते थे गुप्ता जी आप जाओ। वो धर्मेंद्र प्रधान वॉज ऑयल मिनिस्टर इन बिटवीन। Okay. तो उनके PS का मैसेज आया कि मंत्री जी बोल रहे हैं प्रधान साहब के साथ आप जाओ।
मैं कहा प्रधान साहब के साथ जाकर मैं क्या करूँगा कि नहीं जाऊँ, उनको छाबा लेकर जाऊँ। गए। फिर MJ अकबर, ही वॉज स्टेट मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स कुछ थे, वो जा रहे थे। फिर गुप्ता जी आप उनके साथ जाओ, मतलब उन्होंने तो ईरान का मुझे एम्बेसडर भी बना दिया था। हर एक मीटिंग में जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो, कुछ हो, तो आई वॉज अ कॉन्स्टेंट फैक्टर। सो एनीथिंग नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की मीटिंग होती थी, जो भी होता था। सो एंड माई नॉलेज ऑफ द सिटी, माई नॉलेज ऑफ द पीपल, द लैंग्वेज हेल्प मी अ लॉट। सो 2019 में सरकार गवर्नमेंट अगेन थोड़ा चेंज हुआ, गडकरी जी चले गए। ही वॉज नो लॉन्गर विद शिपिंग, उनके पास हाईवेज था खाली। अदर मिनिस्टर केम, तो मिनिस्ट्री में ऐसे ही ब्रांडेड तो था ही मैं कि गुप्ता जी गडकरी के आदमी हैं। ओके। मे बी अगर गडकरी जी रहते तो छाबर मेरे पास ही रहता, कंटिन्यू करता है, एक्सटेंशन मिल जाता। चलो नहीं, मेरा कोई बात नहीं। अगेन यू आर नॉट इसका आदमी उसका आदमी, आई एम जस्ट शिपिंग मैन। बट आई लर्न अ लॉट, और बहुत कुछ सीखने को मिला। जियो पॉलिटिक्स, वो जो ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग होती थी। But sir, ever you felt in these meetings that shipping man, I am using this term, shipping man is ignored? देखो, जो कोर नॉलेज है छाबार की, वो तो मुझसे मिल सकती थी। आई टेल यू, वंस वी वर इन ईरान, तेहरान में, और गडकरी जी भी थे। कल गडकरी जी की मीटिंग है ऑन छाबार पोर्ट विद ईरानियन काउंटर पार्ट्स। होटल में है, सब वेट कर रहे हैं, मंत्री जी आएंगे, उनको ब्रीफिंग करेंगे। मैं अपने कमरे में, मैं कहा जॉइंट सेक्रेटरी ब्रीफ करेगा, एडिशनल सेक्रेटरी ब्रीफ करेगा। तो गडकरी जी रात को आए लेट, तो एडिशनल सेक्रेटरी खड़े हैं, सर ब्रीफिंग कल के लिए, कि नहीं जाओ सो जाओ, गुप्ता जी को भेज दो। अरे फिर मुझे कॉल आया, अरे मंत्री जी बुला रहे हैं, मैं तो सोने की तैयारी कर रहा था। ही वॉन्ट्स ब्रीफिंग डायरेक्टली फ्रॉम मी। गए गडकरी जी के रूम में, ब्रीफ करे, वो कपड़े चेंज कर रहे हैं इनटू नाइट ड्रेस, कि बोलते जाओ। वेरी गुड ग्रास्प। 15-20 मिनट मैंने उनको, ठीक है, आई एम रेडी फॉर टुमारोज मीटिंग। Okay. सो ही वॉन्ट्स इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड। बॉम्बे भी कभी आते थे ना, उनका घर है वर्ली में, सुखदा। Okay. मैसेज आ जाता था, मंत्री जी मिलना चाहते हैं। तो शुरू में तो मैं घबराया कि इसलिए मिलना चाहते हैं। तो शाम को गए, वेट कर रहे हैं, इतने लोग वहाँ वेट कर रहे हैं। मंत्री जी आए, उन्होंने कोने से देख लिया, सबसे पहले मुझे बुलाएंगे। बाकी तो सब पॉलिटिशियन वाले हैं ना, पूछेंगे अगेन वही। So shipping man is never ignored. उनको मालूम है धंधा पहले है, पॉलिटिक्स बाद में। Right, sir. बैठेंगे, चाय पिलाएंगे, कि कुछ स्पेशल चाय होती थी, नमकीन चाय पीनी पड़ती थी। और इतनी भीड़ में सबसे पहले बुलाएंगे। मतलब ग्रेट पर्सन यार, मतलब ही यूज्ड टू गिव यू फुल रिस्पेक्ट, इज्जत। एक बार ऐसे ईरान से वापस आ रहे थे, वही इंडियन एयरफोर्स का प्लेन था। प्लेन वॉज टू गो बैक टू दिल्ली ओनली, Okay. बट समहाउ कुछ ऐसा कुछ हो गया कि मंत्री जी को नागपुर आना पड़ गया। Okay. साली हमारी फ़्लाइट तो दिल्ली टू बॉम्बे बुकड है, Okay. और हम नागपुर में आकर फंस जाएंगे। Okay. प्लेन नागपुर लैंड किया, मेरे नागपुर बॉम्बे टिकट्स आर रेडी। Okay. इनका कोई बंदा आया, पासपोर्ट लिया, उसने मेरा सब कुछ क्लियरेंस इमिग्रेशन कराया और मुझे एयर इंडिया के लाउंज में आकर बिठा दिया। मैं कहा पैसे वैसे क्या? कहते कुछ नहीं, हमने सब कर दिया है। मतलब मंत्री सोच रहा है कि मेरे Right. कारण ये सफर इनको हुआ है। इनकन्वीनियंस होगा। हाँ, राइट। ग्रेट पर्सन। अनदर इंसिडेंट, ये शुरू में मंत्री बने, इनको शिपिंग मिनिस्ट्री मिली। ये सियादी गेस्ट हाउस है इधर ओके। मलाबार हिल पर। ओके।
तो इनका प्रोग्राम मेरे पास आ जाता था। ओके। तो मैंने इनके पीएस से पूछा, मैं कहा मंत्री जी आ रहे हैं, मेरा आने की ज़रूरत है प्रेस मीटिंग में? ओके। कहते हैं ज़रूरत तो नहीं है, आ जाओ तो अच्छा है। ओके। ठीक है, आ जाता हूँ। सो आई वॉज लेट। तो हॉल खचाखच भरा हुआ है सियादरी गेस्ट हाउस का, प्रेस से, ऑल पीपल। मंत्री जी ऑलरेडी ऑन द डायस। मैं दरवाजे पर खड़ा देख रहा हूँ कि यार कहीं बैठने की जगह है, 5-10 मिनट में बैठो। तो इन्होंने देख लिया ये आया है। फिर किसी पत्रकार ने पूछा SCI के बारे में कि कैसा है SCI, ये वो वही लॉस का चक्कर। तो यू नो व्हाट गडकरी जी सेड कि डोंट वरी अबाउट SCI, प्रॉफिट कर रहा है, करेगा। मैं मिस्टर गुप्ता का अभिनंदन करता हूँ, वो कहीं बैठे हैं यहाँ, ओके। कौन भूलेगा। राइट 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 सच अ बिग इंकरेजमेंट। राइट नहीं तो मती तो खुद क्रेडिट लेगा, राइट। बट इससे मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। सर 45 years in a shipping. हाँ, सब लगा लो 72, 76 तो अभी 45 से ज़्यादा हो गया। Sir, how you see today when you look back? I am very happy, satisfied. God has been very kind. I don't say I deserved it, but I grabbed all the opportunities which came in my way. I was at the right place at the right time. I did not waste the opportunities. I had good support from my family, especially my wife, who always encouraged me. So I was never very ambitious, but yet when you see the target is within you, तब हो जाता है। So here is a learning, sir. When we young, like in my age also, we look, okay, one should be ambitious. But no, I think hardworking and right time, right place, these things also play a big साइलेंट factor. ऑपरेटर, क्वाइटली करो, भगवान देखता है, और जो कोई मौका आए छोड़ो मत। बाकी जो रब ने करना है वो तो होना ही है। वो तो होना ही है। बट आई एम वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड आई वुड से मोर देन माई SCI tenure, छाबर का मेरा टेन्यर वॉज समथिंग, अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब कि जयशंकर के साथ बैठकर सुबह होटल में ब्रेकफास्ट हो रहा है, और कितनी मीटिंग्स। जयशंकर दैट टाइम वॉज फॉरेन सेक्रेटरी, एंड हाउ ही यूज्ड टू कंडक्ट एंड ऑल। कैसे बोलना है, मना भी करना है तो किस तरह से मना करना है, ऑल दैट आर्ट, और गिव द मैसेज क्रिस्पली। ब्यूरोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। सो दे यूज्ड टू कॉल मी फॉर ब्रीफिंग, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, क्या हो रहा है। उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री को दिया है, तो बेसिकली फॉरेन मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है, एंड फॉरेन मिनिस्ट्री हैज टोल्ड शिपिंग मिनिस्ट्री टू इम्प्लीमेंट all the decisions are by the foreign ministry. So I have to interact a lot with the foreign ministry also. सुषमा स्वराज तब थी alive, कितनी meetings. She is also always remembered by all seafarers because she done a lot for shipping as well as for the seafarer welfare. Very positive woman, very positive woman, very positive. So Sir, later on you joined Dredger Corporation of... I was independent director. Independent director. I was not never a full-time director. वो tenure भी पूरा हो गया. Okay, sir. Sir, many of us even not sure about how Dredger Corporation of India works. Could you just briefly tell us that what is their working area and how they are doing? See, dredging में दो aspects होते हैं, capital dredging and maintenance dredging. कैपिटल ड्रेजिंग में तो ये है कि आपको नया पोर्ट बनाना है, कोई नई जगह रिक्लेम करना है, तो कैपिटल ड्रेजिंग है, और उसके लिए कटर ड्रेजर्स चाहिए। और मेंटेनेंस ड्रेजिंग में तो वो ऐसा होता है कि सिल्टेशन हो रहा है बार बार, जैसे हुगली में है, उस टाइप के सक्शन ड्रेजर्स चाहिए। ड्रेजिंग आपको कंटिन्यूसली ड्रेजिंग करनी पड़ेगी। ड्रेजिंग तो DCI हैज़ गॉट बेसिकली मेंटेनेंस ड्रेजिंग के ड्रेजर्स
Okay. DCI पहले SCI के साथ ही था, 1975 तक SCI के साथ ही था. Okay. उसके बाद इन्होंने अलग से कंपनी बना दी, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सो इट वाज अ PSU, बट बाद में फिर उसका डिसइन्वेस्टमेंट करके अब 4 पोर्ट्स आर द मालिक, पारादीप, वाइजैक, GNP एंड कांडला. दे आर द मेजर शेयर होल्डर्स ऑफ ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. अगेन वही प्रॉब्लम DCI में है. MD शुड बी फॉर अ लॉन्गर टर्म. 1 साल 2 साल एक्टिंग MD ये नहीं चलेगा. कंपनी, अ पर्सन मस्ट हैव अ लॉन्ग टर्म विजन. Sir, from vision, when you were in SCI on the position of CMD, you must have taken some futuristic decision. भैया मेरा तो एक ही था कि मुझे प्रॉफिट दिखाना है. नहीं, जो भी कुछ करा इट वाज ऑल बोनाफाइड एंड आई वाज सो लकी टू हैव सपोर्ट. नहीं तो मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, वो बहुत बुक करते हैं, बट मंत्री जी का पूरा सपोर्ट था. मंत्री जी साफ यूज्ड टू टेल मी इन द मीटिंग, सब बैठे हैं, यूजिंग एडजेक्टिव्स, अगर कोई तुमको तंग करता है मुझे बताओ. Okay. यू हैव अ फ्री हैंड. कभी कॉरिडोर में मिल भी जाते थे मिनिस्ट्री में, गुप्ता जी कैसे चल रहा है, कुछ 4-5 लोग, कोई तकलीफ हो मेरे पास आना, 4-5 लोग सुन रहे हैं. सो एनीवे आई वाज ब्रांडेड एज. एक बार फिर इनके PS ने कुछ बोला कि मंत्री जी चाहते हैं ये करना है. आई सेड नहीं हो सकता. फिर नहीं मंत्री जी ने कभी कुछ नहीं बोला. मैं कहा मैं नहीं कर सकता, नहीं हो सकता. आप दिल्ली आ जाओ, उनको कह देना, मैं कह दूंगा. Okay. दिल्ली गए, PS ने मुझे खड़ा कर दिया मंत्री जी के सामने. ये क्या हुआ? ये साहब गुप्ता जी कह रहे हैं कि जो आपने कहा था ये नहीं हो सकता. आई टोल्ड गडकरी जी, सब ऐसा ऐसा है सिस्टम में, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. फेयर इनफ, कुछ नहीं. ये तो कोई होता नहीं, करना है, कैसे करना है तुम जानो. Right. He never pressurized. Actually, sir, as a nation, we have to, like as you said, this has to done. The people, the top-notch authorities within the industry, they are specialized with their skill, like 30, 35 years, 40 years. The hand must be given to them to perform. Absolutely. Because they are having the, even not only in shipping, when we go to any other sector, somebody born and brought up in specific industry and he knew A to Z everything. He lived that life from A to Z, from trainee marine engineer to CMD. He had seen entire working culture. God is great that an engineer could reach at that level. और फ्यूचर में भी ये होगा नहीं होगा, इज वेरी डिफिकल्ट टू से. राइट. या मैं गडकरी जी के बारे में बताऊँ, और ईरान में भी मीटिंग्स होती थी, कुछ होता था, ईरानियंस कुछ बोलते थे. गडकरी जी को शिपिंग का इतना कुछ नहीं मालूम. ईस्ट स्टेट से आप गुप्ता जी के साथ बात कीजिए, जो भी आपको डिस्कस करना है, he will solve it, he will attend it. If he agrees, well and good. If he doesn't agree, I'll go with him. मतलब what confidence it gives it. Yes. कि मंत्री सीज मी एट, और ईरानियंस के लेवल में आइज में भी मैं कितना उठ जाता हूँ यार, कि मिस्टर गुप्ता को पूरी अथॉरिटी है. He is using your knowledge from sailing days to a great person. पिछले महीने में 6 साल बाद उनको मिला. Okay. 2019 के बाद मैं नहीं मिला था. बस क्या करना, पर मौका मिला. मैं स्टिल वेरी नाइस. मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ. मैंने फोटो भेजी थी? नहीं सर, मैं भेज दूंगा. Okay. Sir, now we are end of this session. We have taken a very good learning. Sir, the last thing, again, very direct question, sir. For the new aspirants, those who would like to join, and those are sailing on the junior ranks, what is your message for them? And where did you see the Indian shipping in next 10 years? See,
India has been one of the major suppliers of seafarers to global shipping. We have a name for ourselves. That name should not be lost. जब हम यंग थे, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना वॉज अ वेरी कवेटेड थिंग, पर अभी बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, पायरेसी, हाईजैकिंग, थोड़ा इट इज़ नॉट अ फेवर्ड प्रोफेशन. All said and done, India must maintain or increase our share in global market seafarers. We have very good training institutes now, and I would tell all youngsters, be a good human being. Work diligently. कर्म करो, फल की इच्छा मत करो. Everything will fall in your way. रब देखता है. Government is giving thrust Indian shipping as far as shipbuilding, repair, our tonnage, we are far behind. पहले भी कोशिश करी गई थी जब गडकरी जी थे, बट इंडियन शिपयार्ड्स को जो भी स्कीम थी मिसयूज किया. Still, we are lacking for the ecosystem for a shipbuilding. यस, अभी फिर मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड का बजट में आया है. गवर्नमेंट इज प्रिपेयर टू सपोर्ट, बट इट शुड नॉट बी मिसयूज्ड. दैट इज अ थिंग. गवर्नमेंट पुश कर सकती है, पर हमको वो अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करनी. काफ़ी कुछ हो रहा है अभी. लेट अस सी. इंडिया में शिप बनने चाहिए. यस, बनने चाहिए. SCI has given lot of opportunities to CSL. आज CSL कोचिन शिपयार्ड कैसे इतना आया है? SCI ने बहुत सपोर्ट किया है, एंड वी आर वेरी प्राउड जब फादर देखता है कि बेटा इतना अच्छा कर रहा है. Yes. आजकल मिनिस्ट्री में CSL को ज़्यादा भाव दिया जाता है इंस्टेड ऑफ SCI. सो नहीं, हमको कोई जेलसी नहीं है. वी आर वेरी नाइस. हमने उनसे जहाज़ लिए हैं, महंगे जहाज़ लिए हैं मार्केट प्राइस से. यस, वी हैव टू गिव चांस टू इंडियन इंडस्ट्री. उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो करेंगे. Right. Better to buy expensive one from the हाँ. our vocal for local. हाँ, एब्सोल्युटली. और कोचिन शिपयार्ड हैज़ नॉट वेस्टेड दैट अपॉर्चुनिटी. और कितने जहाज़ तो हमने कुछ बिना टेंडर के उनके साथ ऑर्डर करे हैं. Okay. प्राइस नेगोशिएशन जो मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा होते थे. और देखो, इफ़ यू बाय अ शिप अबव द मार्केट प्राइस, उसका इम्पैक्ट पूरे लाइफ पर आता है. शिप की लाइफ पर लोन है, लोन का इंटरेस्ट है. अगर मैंने जहाज 50 मिलियन में ख़रीदा, अगर मैं बाहर के मार्केट से लेता 40 से मिल जाता, तो कॉस्ट बढ़ती है. डेट सर्विसिंग की कॉस्ट आती है, फाइनेंस कॉस्ट आती है. पर इन द लार्जर इंटरेस्ट SCI हैज़ टेकन दैट Initiative. और फिर बोलते हैं आप प्राइवेट वालों के साथ compete करो. वही शिप ग्रेट ईस्टर्न 40 में खरीदेगा, आपने मुझे 50 में खरीदवाया है, और क्वालिटी में भी फ़र्क है. और अभी भी इंडिया में शिप रियली टर्म में बनते नहीं हैं, असेंबल होते हैं. दैट एंसिलरी इंडस्ट्री, मेन इंजन, जनरेटर, ऑल द पंप्स, सब यहाँ बनने चाहिए. इट्स अ चिकन और द एग स्टोरी. Right. जैसे बोला इकोसिस्टम. Right. I took a yard delivery of one of the ship 2011, and I got chance to see the shipyard. विच शिपयार्ड? It is in Seoul. Sorry, in Busan. Busan, हाँ. I forget the name of. I think Hyundai Shipyard. Hyundai. Ulsan. Yeah, Ulsan. Yeah, Ulsan. Hyundai. Such a big industry. I think like thousands of people are working there. दैट एरिया बुसान, उल्सान, इतने शिपयार्ड्स हैं, इतने Right. शिपयार्ड्स हैं. मैं तो जैसे बोलो ना, बहुत गया हूँ उधर. सो मेनी शिपयार्ड्स. और बुसान के पास एक जगह है चोंगवांग.
Okay. वहाँ सब ये पम्प्स वम्स Machinery. मशीनरी बनाने वाले, ऐसी एंसिलरी इंडस्ट्री. सो दे हैव टू सपोर्ट द शिपयार्ड लोकल. इंडिया में तो बहुत कम है, किर्लोस्कर वगैरह और थोड़े बहुत पंप वाले हैं. पर अगेन अब पंप वाले बोलते हैं कि हमको ज़्यादा ऑर्डर मिले तो हम ज़्यादा करें. यार्ड बोलता है कि हमको इन पर विश्वास नहीं है, गारंटी नहीं देते, ये नहीं देते. इट्स अ चिकन और द एग स्टोरी. Thank you very much for sir today's show, and you have shared your knowledge, your experience, and your learnings from your previous experience. It is a really wonderful time with you, sir, and I hope in future we will again sit with you and we will discuss more about shipbuilding and how Indian shipping can come up. Thank you very much for sir today. Thank you, Jaspreet. Hope I have been to your expectations. No, sir, you're more than that. It is, I don't have, my age is 40 years and you had experience of 45 years, sir. So anytime, anything I can do for the industry to help, I'll be there. Thank you very much, sir. Thank you. Thanks a lot, sir.